Good morning, students. Last class we have discussed about inequality, and about the rule of inequality and how to solve the problems of inequality, and how the solutions of inequality draw in a real line. So in today's class we will discuss about how it is used in practical problems, just like how it is used in different this word problems. Okay, so today we'll discuss on this. So let's see in our book inequality. Already we have discussed about the rule and how to draw the linear inequality in a real line. Okay, so up to question number 20. Up to question number 20 I have told earlier to try to do. So almost all the students have done, but some students get problem in question number 20. So one second, I will discuss about question number 20 and then we'll go for 21 and all. Okay, so and today we'll solve this language problems, and if possible then we will go for about how to draw the inequality in graph. Okay, in graph, how to draw inequality in graph, what are the rule to draw the inequality in graph. Okay, that is also we will discuss if possible in today's class. So let's see the solution of question number 20. Okay, question number 20. Okay, because of fraction some students have got problem, thought how to draw this fraction. Okay, so this simplification all of you have done already. So after simplifying, you have got x is greater than is equal to equal to minus 2/3. Okay, so that is all of you already have done. Okay, so the graphical representation, say you get problem in graphical representation. So let's see how to draw the graphical representation of x greater than is equal to minus 2/7. Okay, so our inequality is x is x is greater than is equal to minus 2/7. Okay, so better if you find the decimal of this fraction, then it will be easy and it will help us to draw the graph easily. Okay, so I will divide 2/7. So it will become, first the decimal will come. Okay, now 7 2 jai 14, 6 0, 7 8 jai 56, like this will come decimal, but up to, if we take up to 2 decimal, then it will be 0.28. so it will be between this number is, so x is greater than is equal to minus 0.28, and we know that minus 0.2, where it lies between 0 and minus 1. Okay, so this number is lies between 0 and minus 1. 0 and minus 1 के बीच में ये कोई एक पॉइंट में होगा. Okay, so you have to put this number here. Okay, 0 and between 0 and minus 1 you have to choose any one point, and you give the name, that is minus 2/7. But remember that you have to choose the point between 0 and minus 1, because this is the number minus 0.28 which lies between 0 and minus 1. Okay, so this number lies between 0 and minus 1. So when you put this number, it must be between 0 and minus 1. Okay, so जब भी ये नंबर को पुट करोगे तो it should be between 0 and minus 1 के बीच में पुट करना होगा, because minus 0.2 this number is lies on 0 and minus 1 के बीच में. ठीक है, तो एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग को प्रॉब्लम होगा निकालने के लिए, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ में लिख दिया एक पॉइंट, दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट रिप्रेजेंट दिस पॉइंट minus 2/7. ठीक है, बट ये पॉइंट को बिटवीन 0 एंड minus 1 के अंदर ही लिखना पड़ेगा, इस तरफ लिखने से तुम रॉन्ग हो जाएगा. Okay, so you have to make sure that this point lies between 0 and minus 1. Okay, as it is 0.2. Okay, so now you have to draw the diagram like this, as it is greater than or equal to. So as equal sign given, so this circle should be dark. So here it is dark circle given, and it is greater than
greater than this. So greater than this, that means it will come this side. Okay, because here minus 0.2 से बड़ा है, is greater. Okay, let's see, greater given, yes, greater. So it should be like this. Okay, so this graph will come like this up to plus infinity. Okay, we'll put here A and we'll put here B. Okay, and this is a dark circle because equal sign given, so it should be a dark circle. Okay, so using pencil you have to make it dark, and this line also some of you not make dark, so ये जो line है इसको ऐसा पेंसिल से डार्क करना होगा और ये पॉइंट को भी डार्क करना होगा. So this line AB represent, so some students have not done the representation. One second, I tell you today that let you have to consider here are not given representation, but better to give the representation. Okay, because then examiner can easily understand that what you have considered here. Okay, what does it mean by this AB and this dark circle, dark line? So let this you'll consider this is L. Let L represent number line. Okay, number line, and L represent number line, and line AB, and the line AB represent solution region of the given inequality. Okay, given inequality. So this line AB represents solution region of the inequality, and this dark circle, what does it mean? That the dark circle represent that represent that the point including the solution region. Okay, including or contain, including solution region. Okay, either you may say including the solution region or may contain in the solution region. Okay, so that means ये जो point है ये solution region में है, जिसको यहाँ में मैंने pink color में draw किया, that is the solution region of the given inequality. This is, or maybe you can say this is the given inequality, and the solution is, this is the solution. Okay, so this is all about this problem. So we know already how to draw the graph in real line. So now let's solve some theoretical problems, that how this inequality is used in real life problems. Okay, because we know whatever we learn, if we cannot use in our real life, that does not mean anything. Okay, so that's why most of the person says that where I can use all these formulas of mathematics. So here is the use. Okay, nowadays this everywhere you can use mathematics formula. Okay, you know, when you go for some shopping mall, there is so many, and there they may get there you may see that some vouchers are there where you will get barcode. Okay, and like this, when you go to the Vishal market or maybe some big bazaar like this, then they read by one machine they using that machine they can capture the numbers, the price from that product. Okay, some barcode are fixed in the product, and when they put on light, when they put on light, that price automatically come to their computer. So these are all by cryptography. This is about mathematics. So, okay, so all these things you'll get later on. Okay, so everywhere it is using now. So some people says that where these formulas of mathematics used, they maybe don't know, but in real life, everywhere it is using, and mathematics is the part of technology. Without mathematics, no technology can run. Okay, so let's see this question number 21.
Ravi obtained 70 and 75 marks in different in first two unit test. Ravi obtained 70 and 75 marks in first two unit test. Okay, so Ravi फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितना मिला उसको 70 एंड सेकेंड यूनिट टेस्ट में उसको मिला सपोज 75. नाउ फाइंड द मिनिमम मार्क्स he should get in the third unit test. Okay, find the minimum marks he should get in the third unit test to have an average of at least 60% marks. Okay, that means ओवरऑल 3 टेस्ट होगा, फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट एंड थर्ड टेस्ट. तो फर्स्ट टेस्ट में उसको मिला 70, सेकेंड टेस्ट में उसको मिला 75. नाउ अभी थर्ड टेस्ट में उसको कितना मिलने से मिनिमम उसको 60% मार्क्स आएगा. मिनिमम 60% मार्क्स के लिए मिनिमम, ठीक है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है बट कम से कम मिनिमम, दैट इज़ वी नो दैट फर्स्ट डिवीजन 60% मार्क्स इफ ही गेट देन यू विल गेट फर्स्ट डिवीजन मार्क्स. सो दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दैट 60% मार्क्स. सो थर्ड यूनिट टेस्ट में उसको कितना मार्क्स, मिनिमम कितना मार्क्स मिलने से उसको 60% मार्क्स मिल जाएगा. ओके, दैट डज नॉट मीन दैट ही विल गेट 60% मार्क्स ओनली, ही मे गेट मोर देन 60% मार्क्स, बट कितना मिनिमम, व्हाट इज़ द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट टू गेट मिनिमम 60% मार्क्स. मतलब कम से कम 60% मार्क्स मिलने के लिए उसको थर्ड यूनिट टेस्ट में कितना मार्क्स चाहिए. ओके, समझ में आया ना. तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसको 70 मार्क्स मिला, 60% के लिए तो 60 चाहिए, यहाँ में वो ज़्यादा मिल गया, 10 मार्क्स ज़्यादा मिल गया, यहाँ में उसको 15 मार्क्स ज़्यादा मिल गया 60 से. तो ऑब्वियसली यहाँ में थोड़ा कम मिलने से भी उसको 60 मिल जाएगा एवरेज. तो हम लोग को वही बोला कि एवरेज, ये तीनों का एवरेज जो है, तीनों एग्जाम में एवरेज उसको 60% मार्क्स मिलने के लिए उसको मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए इन थर्ड यूनिट टेस्ट. ठीक है, तो कम से कम बोला है. तो ये जो मिनिमम वाला केस है उसी के लिए यहाँ में ये इनइक्वलिटी वाला आ जाएगा, मतलब लेस देन और इक्वल टू. मिनिमम वाला केस मतलब सॉरी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू मतलब आइदर जो भी मार्क्स होगा, सपोज मैं इसको पकड़ लेगी सपोज एक्स, तो थर्ड यूनिट टेस्ट में उसको मिनिमम एक्स मार्क्स मिलना पड़ेगा. मतलब थर्ड यूनिट टेस्ट में उसको मिनिमम एक्स मार्क्स का मतलब है कि 60% मिलने के लिए उसको कम से कम एक्स मिलना पड़ेगा. तो कम से कम मतलब एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, सॉरी ये थर्ड यूनिट टेस्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए, आइदर एक्स के साथ इक्वल होगा. ये थर्ड टेस्ट में उसको आइदर एक्स के साथ इक्वल होना पड़ेगा, नहीं तो एक्स से ज़्यादा मार्क्स उसको मिलना पड़ेगा, तब जाके उसको फर्स्ट डिवीज़न मिलेगा. ठीक है, तो मिनिमम कितना मिलना पड़ेगा, एक्स मिलना पड़ेगा, पकड़ लिया. ठीक है, तो अभी ये जो एक्स है उसको निकालने के लिए हम लोग को इनइक्वलिटी यूज़ करना होगा. कैसे, देखो, लेट हम लोग थर्ड यूनिट टेस्ट मार्क्स को एक्स पकड़ लिया. लेट एक्स बी द मार्क्स लेट एक्स बी द मार्क्स ऑब्टेन बाय रवि इन थर्ड यूनिट टेस्ट. ठीक है, तो रवि जो है वो थर्ड यूनिट टेस्ट में उसको कितना मिला, एक्स मार्क्स मिला. ठीक है, नो, ठीक है, okay, so let's do this problem. Let Ravi get x marks in third unit test. ओके, लेट रवि गेट एक्स मार्क्स इन थर्ड यूनिट टेस्ट. बिकॉज फर्स्ट यूनिट में तो कितना मिला, दिया हुआ है 70, सेकेंड यूनिट में दिया है 75, बट थर्ड में दिया नहीं है. कितना मिला है, मिलना चाहिए उसको मिनिमम. तो हम लोग कंसिडर करेंगे लेट रवि गेट मिनिमम. ठीक है, रवि गेट, ओके, मिनिमम नहीं लिखने से भी होगा. मतलब रवि जो मार्क्स थर्ड यूनिट में मिला उसको हम लोग पकड़ लिया कि एक्स है. लेट रवि गेट एक्स मार्क्स इन थर्ड यूनिट टेस्ट. ठीक है, तो रवि जो है, रवि को सपोज थर्ड यूनिट टेस्ट में एक्स मार्क्स मिला है. ओके, तो अभी हम लोग को चाहिए कि एवरेज 60. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि इसका जो एवरेज है वो कितना होना चाहिए, कम से कम
60 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसको कितना मिला है 70, प्लस सेकेंड यूनिट टेस्ट में उसको कितना मिला है 75, थर्ड यूनिट टेस्ट में उसको जो भी मिला उसको हम लोग एक्स पकड़ लिया, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई कितना होगा, एवरेज निकलना आता है, एवरेज बोला है ना, सो एवरेज मतलब तीनों का प्लस करके डिवाइडेड बाई, एस 3 टर्म्स है सो डिवाइडेड बाई 3 आएगा। अगर यहाँ में 5 टर्म्स होता तो डिवाइडेड बाई 5 होता, ठीक है। तो यहाँ में 3 एग्जाम है तो इसलिए डिवाइडेड बाई 3 आया। इफ़ इट विल हैव 5 एग्जाम देन, अगर यहाँ में 5 एग्जाम होता तो हम लोग नीचे यहाँ में 5 लिखता, ओके। सो नाउ दिस एवरेज इज़, ये जो एवरेज मार्क्स है उसका ये क्या होना चाहिए, मिनिमम 60 होना चाहिए। तो मिनिमम 60 होना चाहिए मिनिमम। तो हम लोग यहाँ में इक्वल तो नहीं लिख सकते बिकॉज मिनिमम बोला, इक्वल होने से तो इसका मार्क्स एग्जैक्टली 60 हो जाएगा। ये इक्वल मतलब एग्जैक्टली, मतलब इसका जो एवरेज है वो एवरेज डायरेक्ट 60 ही होगा, 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, कम भी नहीं हो सकता है इक्वल लिख देने से। समझ में आया ना, इक्वल का मतलब है क्या, एग्जैक्टली इक्वल टू 60। तो बट यहाँ में बोला है कि एग्जैक्टली 60 तो नहीं बोला, बोला है कि उसका एवरेज जो है कम से कम 60 से ज़्यादा भी हो सकता है बोला है, ठीक है। मिनिमम 60 बोला है, मतलब कम से कम उसका एवरेज जो है वो 60 आना चाहिए, बट 60 से ज़्यादा भी आ सकता है, बट 60 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हम लोग को क्या लिखना होगा कि इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो ये जो एवरेज है, ये एवरेज जो है वो आइदर 60 के साथ इक्वल भी हो सकता है, बाई इक्वल 60 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ में ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 आया। समझ में आया ना, बिकॉज यहाँ में बोला है कि एवरेज मिनिमम 60, ओके। सो हम लोग को बोला था कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो कितना मिनिमम मिलना पड़ेगा उसको थर्ड टेस्ट में, तो कम से कम उसका जो एवरेज है वो 60 या 60 से ज़्यादा हो, ठीक है। बस मिनिमम 60 मार्क्स हो, ठीक है। तो अभी इसमें से सिंप्लीफाई करो। तो ये जो है यही है इनइक्वालिटी का यूज़, क्योंकि मिनिमम बोल दिया तो x का कम से कम 60 होना चाहिए इसका एवरेज, या 60 से ज़्यादा भी हो सकता है बट 60 से कम नहीं होगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा मिनिमम, एटलीस्ट, एट मोस्ट, उस टाइम में हम लोग ये लेस देन इक्वल टर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी देख लो, समझ में आया ना। तो एवरेज जो है वो आइदर 60 होगा, नहीं तो 60 से ज़्यादा होगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। हमें बोल दे कि मिनिमम 60, तो मिनिमम 60 तो होना ही पड़ेगा, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी सिंप्लीफाई करो, ये 70 + 75 इट्स बिकम 145। तो यहाँ में हो गया 145 प्लस x, ठीक है। अभी ये जो 3 है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरफ लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 3 × 80 इट्स बिकम 3 × 60 इट्स बिकम 180, ठीक है। अभी x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये 160 को इस तरफ लेके आओ, वन 145 को इस तरफ लेके आओ, तो 180 माइनस 145 कितना आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 35। तो x का वैल्यू जो है मिनिमम कितना आएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35। तो मतलब x का वैल्यू आइदर 35 से ज़्यादा या 35 के साथ इक्वल होना पड़ेगा। तो x के साथ मिनिमम क्या है, इसमें x का वैल्यू देखो ग्रेटर देन 35 बोला, नहीं तो इक्वल टू 35। तो इसमें सबसे मिनिमम क्या है, इक्वल टू वाला केस सबसे मिनिमम है, क्योंकि 35 से बड़ा तो 36, 37, 38 ये सब होगा। तो इसमें इक्वल जो साइन है वो है एग्जैक्टली इक्वल टू 35। तो सबसे छोटा क्या नंबर आएगा, x का वैल्यू क्या हो सकता है सबसे छोटा, वो है 35, ठीक है। जब इक्वल आएगा तब 30, ये इक्वल वाला साइन यहाँ में दिया हुआ है, तो मतलब x का वैल्यू इक्वल टू 35 भी हो सकता है, तो इसलिए इक्वल टू 35 मैंने लिखा। और ग्रेटर साइन मतलब x का वैल्यू 35 से ग्रेटर, तो 35 से ग्रेटर मतलब 36, 37, 38 ये सारा भी आ सकता है। x का वैल्यू 36, 37, 38 डॉट 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 ये सारा x का वैल्यू होगा। बट इसमें हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज़ द मिनिमम x टू व्हाट इज़ द मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60% मार्क्स। तो कम से कम 60% मार्क्स मिलने के लिए उसको मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए, तो मिनिमम मतलब सबसे छोटा बोला, तो सबसे छोटा कितना 35, वो 36, 37 भी मिल सकता है उसको, लेकिन सबसे कम कितना सबसे मिनिमम बोला है, मिनिमम कितना मिलने से उसको 60% मार्क्स मिल जाएगा। तो 35 मार्क्स अगर उसको मिल गया मिनिमम, एकदम कम होने से भी 35 मार्क्स उसको मिलना पड़ेगा। अगर 35 से कम अगर मिल गया तब तो
तब तो उसका परसेंटेज जो है, उसका एवरेज जो है वो 60 से भी नीचे चला जाएगा। तो इसलिए उसको कम से कम 35 तो मिलना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग को मिल रहा है कि एक्स का वैल्यू, ये जो देखो ये अकॉर्डिंग द क्वेश्चन हम लोग लिया था ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 लिया था, और सिंप्लीफाई करके हम लोग को मिल गया कि एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35। तो एक्स का वैल्यू मिनिमम कितना होना पड़ेगा, आइदर 35 या 35 से ज़्यादा हो सकता है, बट मिनिमम तो क्या होगा 35। सो क्या मिलना पड़ेगा उसको, देखो देयरफॉर ये एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर द स्टूडेंट मे बी वो भी मस्ट ऑब्टेन मिनिमम 35 मार्क्स टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। ओके, सो 60 मार्क्स मिलने के लिए उसको मिनिमम कितना मिलना पड़ेगा, 35 मार्क्स मिलना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग को पहले नहीं किया था, ये ओनली इनइक्वलिटी से ही कर सकते हैं हम लोग। ऐसा टाइप का क्वेश्चन किया था, बट उसमें ये मिनिमम वाला केस नहीं था, तब हम लोग वहाँ में इक्वल देके इक्वेशंस का जैसे बना लिया था, जब क्लास 8-9 में किया हुआ है। बट ये जो है इनइक्वलिटी कब आएगा, जब ये मिनिमम वाला पूछेगा। ठीक है, बाय एटलीस्ट वाला केस आएगा। ठीक है, ओके, सो नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। To receive grade A in a course, okay, this question you have to do, I will just explain because it is same as question number 21। तो ये क्वेश्चन मुझे सेंड करना, ओके, एज एन होमवर्क। सो क्वेश्चन नंबर 21 के जैसे सेम है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। ओके, सो ए ग्रेड मिलने के लिए उसको कितना चाहिए, ए ग्रेड मिलने के लिए उसको 90 एवरेज 90 मार्क्स चाहिए, एवरेज। ठीक है, अभी जो हम लोग लास्ट प्रॉब्लम किया था उसमें एवरेज 60 था, तो इसमें क्या होगा, एवरेज 90 मार्क्स और उससे भी ज़्यादा। ठीक है, आइदर 90 और मोर देन 90। ओके, सो एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस। ओके, ईच ऑफ 100 मार्क्स। तो 5 एग्जामिनेशन हुआ, सब में 100 मार्क्स का है। तो ए ग्रेड मिलने के लिए उसको एवरेज जो है, मतलब एवरेज तो अभी मैंने दिखाया था, सबका 5 एग्जाम का मार्क्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 करना होगा, तो उसका बोलते हैं एवरेज। तो एवरेज जो है वो आइदर 90 या मोर देन 90 होना पड़ेगा टू गेट ए ग्रेड। ओके, इफ़ सुनीता's मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर 87, 92, 94, 95। ठीक है, ये 4 मार्क्स दिया गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम के लिए। देन फाइंड द मिनिमम मार्क्स, हम लोग को निकालना है व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशंस टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। तो उसको मतलब फर्स्ट 4 मार्क्स तो दिया हुआ है फर्स्ट 4 एग्जाम का, तो लास्ट जो एग्जाम है मतलब 5th एग्जाम में सुनीता को कितना मिनिमम मार्क्स मिलने से उसको ए ग्रेड मिलेगा। और यहाँ में दिया हुआ है कि ए ग्रेड मिलने के लिए कितना मिलना पड़ेगा उसको, आइदर 90 या मोर देन 90। ठीक है, तो मतलब कंसिडर करना होगा कि लास्ट टेस्ट में उसको कितना मार्क्स मिला है, एक्स। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग द क्वेश्चन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 एंड फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या, 90। ओके, सही हमें दिखाई दे रहा है, तो उसको मुझे करके देना। बट रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना मर्जी से करना, अपना वैसे जैसे मैंने अभी करके दिखाया था। ठीक है, क्योंकि कॉपी नहीं करना चाहिए, बट इट शुड बी फॉलो द वे। इस तरीके से एग्जाम क्वेश्चन को करना है, बट लिखने का तरीका तुम अपना वैसे फिट करो इसको, किस तरीके से लिखोगे। ठीक है, ओके, सर नेक्स्ट विल सी। सर ये क्वेश्चन को मुझे करके देना कि सुनीता को कितना मार्क्स मिलना चाहिए 5th यूनिट टेस्ट में टू गेट ग्रेड ए। ठीक है, ओके, नाउ ये एक नया टाइप का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो इसमें बोला है कि हम लोग को निकालना क्या है, देखो, फाइंड द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स तो मालूम है, ऑड मतलब क्या है, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। जो नंबर को 2 से डिवाइड नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे कि 1 को 2 से डिवाइड नहीं जाता, 3 को भी 2 से डिवाइड नहीं जाता, 5 इज ऑल्सो ऑड नंबर, 7 इज ऑड नंबर, 9 इज एन ऑड नंबर, 11, so these are odd number, okay, which are not divisible by 2। बट इसमें बोला है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। अभी कंसेक्यूटिव का मतलब है कि वन आफ्टर नेक्स्ट। ओके, मतलब 1 के बाद जो 1 के साथ कौन कंसेक्यूटिव होगा ऑड नंबर, जो 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर होगा। तो 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, अगर मैं यहाँ में 5 लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद क्या आता है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 1 के बाद ऑड नंबर इमीडिएट क्या आता है, 3 आता है। तो वी शुड राइट हेयर 3। तो ये दोनों जो है ये कंसेक्यूटिव पेयर है ऑड नंबर का। सिमिलरली 3 के साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के साथ 5। ओके,
So these are consecutive odd positive numbers. Similarly 5,7, 5 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा 7, तो इसको बोलते हैं कंजुगेटिव, मतलब नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट ऑड नंबर। जैसे कि 1 का नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 3, 3 का नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 5, 5 का नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 7, तो उसके बाद जो ऑड नंबर होगा उसको बोलते हैं कंजुगेटिव। ओके, तो कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सो फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ऐसा हम लोग को पेयर निकालना है, दो दो ऑड पॉजिटिव कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, जैसे कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, ऐसा करके, ऐसा पेयर्स, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ऐसा करके पेयर्स को निकालना है। लेकिन किस में से निकलेगा, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, बोथ ऑफ विच, ये दोनों जो नंबर होगा, ये दोनों नंबर क्या होना पड़ेगा, स्मॉलर देन 10, मतलब 10 से छोटा होना पड़ेगा, बट सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो ये दोनों नंबर जो है ऐसा पेयर निकालना पड़ेगा कि जो दोनों दो नंबर जो है, जैसे कि 1 यहाँ में है, 3 यहाँ में है, 1, ये ना फर्स्ट नंबर 10 से छोटा होना पड़ेगा, सेकंड नंबर भी 10 से छोटा होना पड़ेगा, बट दोनों को प्लस करने से 11 से ज़्यादा होना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ में नहीं हो रहा है, यहाँ में क्या हो रहा है 1 + 3 क्या हो रहा है 4 हो रहा है, ये तो नहीं होगा तब, क्योंकि दोनों को प्लस करने से बोला है कि 11 से बड़ा होना पड़ेगा। देख लो ये वाला हो रहा है 5, 5 इज़ ऑड नंबर लेस देन 10, 7 इज़ ऑल्सो ऑड नंबर लेस देन 10, दोनों को प्लस करने से कितना हो जाएगा 5, 5 + 7, 5 + 7 करने से कितना आ जाएगा, 5 + 7 इज़ 12, तो 12 इज़ ग्रेटर देन 11। तो ये जो है 5 और 7 ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि दोनों जो नंबर है 5 और 7 दोनों 10 से छोटा होना पड़ेगा, दोनों को प्लस करने से 11 से बड़ा होना पड़ेगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये 3 और 5 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कितना जितना भी है सबको निकालने के लिए बोला, मैं तो खाली एक ही निकाल के देखा, यहाँ में एग्जाम्पल लेकर देखा कि 3, 5 जो है वो भी 10 से छोटा है, 7 भी 10 से छोटा है, दोनों को प्लस करने से 12, 11 से बड़ा आ रहा है। तो ये जो पेयर है 5 और 7 का, ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एक तो यहाँ से हम लोग निकाल लिया, लेकिन ऐसा और कितना है, तो सारा को निकालने के लिए बोला, ठीक है। तो एक एक करके ऐसा करके तो हम लोग नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट हम लोग प्रॉब्लम में करेंगे, जितना भी है सब डायरेक्ट ऑटोमेटिकली निकल आएगा। देखो कैसे करना है। तो फर्स्ट हम लोग कंसिडर करेंगे कि लेट एक्स बी द स्मॉलर ऑफ द टू कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एक्स बी द स्मॉलर ऑफ द टू कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब दो कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा नहीं लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते कि लेट द टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर आर एक्स एंड एक्स प्लस 2, एक्स एंड एक्स प्लस 2। देखो मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ इसमें, इस तरीके से लिखना क्वेश्चन नंबर 23 को। लेट एक्स बी द लेट एक्स एक्स बी द नहीं सर, ये तो इस तरीके से हो जाएगा। लेट द टू consecutive odd positive इंटीजर आर, एक को लेना x, नेक्स्ट को ले लो x प्लस 2, ठीक है। लेट द टू कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड, हम लोग पॉजिटिव बोल दिया तो ऑब्वियसली x एक इंटीजर है तो x प्लस 2 तो उससे बड़ा ही होगा, बिकॉज पॉजिटिव बोला है मतलब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो x जो भी होगा उसके साथ प्लस कर दो तो ऑब्वियसली ये जो नंबर है इससे x से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ऐसा करके लिख दो द टू कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 2। मैंने यहाँ में x प्लस 2 क्यों लिखा, क्योंकि ऑड नंबर जो है देखो फर्स्ट दो कंजुगेटिव ऑड नंबर बोला है, तो फर्स्ट नंबर को अगर हम लोग x पकड़ा तो नेक्स्ट वाला x प्लस 2 क्यों होगा, मैं दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि अगर मैं ऑड नंबर 1 को लिया तो इसका नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा 3 आएगा, दोनों का बीच में डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है, तो इसलिए 1 के साथ अगर 2 प्लस कर दिया तो ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर तुम 5 लोगे
अगर 5 लोगे तो 5 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा 7, तो इसका बीच में भी कितना डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो दो ऑड नंबर के बीच 2 का डिफरेंस होता है, तो इसलिए फर्स्ट ऑड नंबर का अगर हम लोग 2 लिया, सॉरी x लिया, तो नेक्स्ट ऑड नंबर इसके साथ +2 करना होगा। ठीक है, कुछ लोग होता है कि +1 कर देते हैं। +1 करने से क्या प्रॉब्लम होगा कि ये x को मैंने ऑड लिया और ऑड नंबर के साथ, सपोज ऑड नंबर क्या है 3, उसके साथ अगर मैं +1 कर दिया तब तो ये क्या हो जाएगा 4, और 4 इज़ नॉट ए ऑड नंबर, ये तो इवन नंबर हो जाएगा ना, तो इसलिए +2 लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को दोनों ही ऑड नंबर चाहिए। ठीक है, तो दो ऑड नंबर, पेयर ऑफ ऑड नंबर निकालने के लिए बोला जो ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो एक को हम लोग x लिया, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा x+2। ओके, तो ये होगा कंसिडर। इवन के केस में भी अगर बोला होगा कि दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर, या ऑड के जगह में अगर इवन नंबर बोला होता तब भी x एंड x+2 ही लेना पड़ेगा, बिकॉज x को अगर हम लोग इवन, या मैं अगर इवन नंबर लिख दिया, इवन मतलब दोज आर डिविजिबल बाई 2, तो अगर मैं एक को 2 लिखा तो नेक्स्ट इवन नंबर, इसका नेक्स्ट इवन नंबर क्या आएगा 4, बीच में कितना डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। अगर मैं 4 लिया, 4 का नेक्स्ट क्या आएगा 6, डिफरेंस कितना का है 2 का है, तो इसलिए एक को अगर x लिया, नेक्स्ट वाला x+2 लेना पड़ेगा, अगर वो इवन हो या ऑड हो। ठीक है, अगर बोल दिया कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड तब भी तुमको x एंड x+2 लेना है, अगर बोल दिया कंसेक्यूटिव इवन तब भी x एंड x+2 ही लेना है। ठीक है, सेम प्रोसेस। तो ये कंसिडरेशन सेम ही करना पड़ेगा फॉर इवन के केस में भी, ऑड के केस में भी। ओके, सो नाउ अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड ऑल द कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। ठीक है, तो स्मॉलर देन 10 देयर सम इज ग्रेटर देन 11। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला है कि ये दोनों नंबर जो है क्या होना पड़ेगा, लेस देन 10 होना पड़ेगा। मतलब x जो है इट शुड बी लेस देन 10, कॉमा ये जो है x+2 ये भी क्या होना पड़ेगा लेस देन 10, एंड और एक कंडीशन क्या बोला, दोनों का सम ऑफ द टू नंबर इज ग्रेटर देन 11, तो ये दोनों का प्लस। ठीक है, दोनों का प्लस कर दो, दोनों का सम, तो x+2। ओके, सो x+x+2 इट शुड बी ग्रेटर देन 11। ठीक है, सो ये जो दो नंबर दिया हुआ है, ये दोनों नंबर 10 से छोटा होना पड़ेगा। x जो है ये भी 10 से छोटा होगा, x+2 भी 10 से छोटा होगा, बट दोनों को प्लस करने से, x एंड x+2 को प्लस करने से ये 11 से बड़ा होगा। तो x+x+2 इज ग्रेटर देन 11। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आएगा। ठीक है, तो अभी इसमें से देख लो, इसमें से तो है x लेस देन 10, इसको ये 2 को राइट साइड में लेके जाओ तो क्या आ जाएगा 10 - 2। ठीक है, और इस तरफ आ जाएगा x+x, ये हो जाएगा 2x, और इस तरफ आ गया +2 इज़ ग्रेटर देन 11। ठीक है, समझ में आया ना। तो अभी ये x+x 2x और ये 2 ग्रेटर देन 11। अभी इसमें ये 2x जो है ये 2 को राइट साइड में लेके जाओ, 11 - 2। ठीक है, ये 2 को राइट साइड में लेके गया। अभी इसमें से क्या हो जाएगा 11 - 2 मतलब 9, और ये लेफ्ट साइड का 2 को राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके आओ, ये 2 इस तरफ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा नीचे 2 आ जाएगा। दैट मीन्स इसमें से हम लोग को मिल जाएगा कि x इज़ ग्रेटर देन 9/2 मतलब 4.5। ओके, सो x इज़ ग्रेटर देन 4.5, और यहाँ में हम लोग को मिल गया कि x इज़ लेस देन 10, x इज़ लेस देन 10 - 2 9। ठीक है, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 4.5 एंड लेस देन 9 लेस देन 10। ठीक है, तो ये दोनों, ये 3 कंडीशन मिला हम लोग को, x लेस देन 10, x लेस देन 9, x लेस देन 4.5। ठीक है, तो अभी इसमें से हम लोग को x का वैल्यू चूज़ करना होगा। ठीक है, सो अभी देखो
सेम क्वेश्चन और एक भी है। ओके, हम लोग कौन सा कर रहा था, ये क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो हम लोग को अभी हमें क्या क्या कंडीशन मिला, एक्स का वैल्यू लेस देन, तीन कंडीशन मिला था। यहाँ में तो दो ही लिखा है, एक्स लेस देन 8 एंड एक्स ग्रेटर देन 4.5। बट हम लोग यहाँ में जब लिखा था मैंने, तो यहाँ में हम लोग को कितना मिला था, तीन कंडीशन मिला था ऐसा। ठीक है, यहाँ में हम लोग को तीन कंडीशन मिला था, एक्स लेस देन 10, सॉरी ये हमें एक मैंने गलत कर दिया ना, ये 8 होना चाहिए था, 10 माइनस 2 8। ओके, सो अभी देख लो एक्स का वैल्यू क्या होना पड़ेगा। तो ये तीनों कंडीशन को मिला के हम लोग एक कॉम्बाइन इनइक्वालिटी बना लेते हैं, जैसे कि एक्स का वैल्यू, सो देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या होगा 4.5 से एक्स इज़ ग्रेटर देन क्या बोला 4.5, तो एक्स का वैल्यू 4.5 से बड़ा होगा। ठीक है, बट लेस देन किससे लेस देन होगा, लेस देन 8। ठीक है, यानी 8 को ही क्यों लिया, यहाँ में लेस देन 10 भी था, क्योंकि लेस देन अगर 8 है तो ऑब्वियसली वो 10 से भी तो लेस देन ही होगा। देखो ये दोनों कंडीशन को नहीं लिख के मैं इसको लेने से इनफ है, बिकॉज ये चीज़ तो यहाँ में या क्या इसके अंदर है, बिकॉज लेस देन 8 अगर हो गया तो वो तो लेस देन 10 भी होगा ना, जो नंबर 8 से छोटा है वो तो 10 से भी छोटा होगा। तो हम लोग को दो कंडीशन मिला था कि एक्स का वैल्यू 10 से भी छोटा होना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू 8 से भी छोटा होना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिखने से ही हो जाएगा, इसको नहीं लिखने से भी होगा, क्योंकि एक्स अगर 8 से छोटा है तो ऑब्वियसली वो तो 10 से भी छोटा आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, एक्स का वैल्यू अगर 8 से छोटा है तो वो तो 10 से छोटा आएगा ना। लेकिन अगर हम लोग 10 से छोटा लिखा तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी कर सकते, तो इसलिए हम लोग दोनों कंडीशन को, जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसी को लिखना पड़ेगा। तो एक्स लेस देन 8 लिखा, बिकॉज एक्स लेस देन 8, एक्स का वैल्यू अगर 8 से छोटा है तो ऑब्वियसली वो 10 से भी छोटा आएगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो अभी इसमें से मतलब ये तीनों कंडीशन को कंबाइन करके मैंने ये कंडीशन बना दिया। ये जो कंडीशन बनाया ये इसमें ये तीनों कंडीशन है, देखो एक्स ग्रेटर देन 4.5, एक्स ग्रेटर देन 4.5। अभी ये वाला केस एक्स लेस देन 8, एक्स लेस देन 8 यहाँ में मैंने लिख दिया। अभी एक्स लेस देन 10 भी आ जाएगा यहाँ में, क्योंकि एक्स अगर 8 से छोटा है तो ऑब्वियसली एक्स 10 से भी तो छोटा होगा। समझ में आया कि नहीं, एक्स का वैल्यू अगर 8 से छोटा है तो ऑब्वियसली एक्स तो 10 से छोटा होगा, बिकॉज 8 से छोटा जितना भी नंबर है, 8 से छोटा जितना भी नंबर है वो सारा क्या हो जाएगा 10 से छोटा ही होगा, बिकॉज 8 इटसेल्फ भी 10 से छोटा है। तो इसलिए 8 से ही अगर छोटा है, ऑब्वियसली एक्स अगर 8 से ही छोटा है तो ऑब्वियसली वो 10 से भी तो छोटा होगा। तो इसलिए एक्स का वैल्यू अगर 8 से छोटा है तो ऑब्वियसली वो 10 से भी छोटा होगा, बिकॉज 8 इटसेल्फ 10 से छोटा है। तो एक्स अगर 8 से छोटा है तो एक्स 10 से भी छोटा होगा। ठीक है, तो ओनली ये वाला लिख सकते हैं 4.5 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 8। ठीक है, तो ये 10 को नहीं लिखने से भी होगा, बिकॉज एक्स लेस देन 8 होने से एक्स लेस देन 10 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर मतलब अगर एक्स 8 से छोटा है तो ऑब्वियसली वो 10 से भी छोटा होगा। ठीक है, तो अभी इसमें से हम लोग को लिखना पड़ेगा। इसके बाद ये लिखा है ना, सो देयरफॉर 4.5 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7। सो विच इज़ इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं कि विच इज़ इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या क्या आ सकता है, एक्स का वैल्यू, रिमेंबर दैट एक्स इज ए ऑड नंबर। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, व्हाट आर द ऑड नंबर्स बिटवीन 4.5 एंड 8। 4.5 और 8 के बीच में क्या क्या पॉजिटिव ऑड नंबर्स है। ठीक है, तो इसके बीच में सारा पॉजिटिव नंबर ही है। तो इस 4.5 से बड़ा ऑड नंबर फर्स्ट क्या आएगा 5। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 7। सो 5 एंड 7 जो है वो ये दोनों के बीच में है। ठीक है, तो अभी इसमें से एक्स का वैल्यू हम लोग को 5 मिल गया और 7 मिल गया, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, बट हम लोग को x प्लस 2 का भी तो वैल्यू निकालना है, ये तो हम लोग खाली x का ही वैल्यू निकाला। तो अभी x प्लस 2 का वैल्यू क्या आएगा, सो देयरफॉर इफ x इज इक्वल टू 5 देन x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
एक्स प्लस टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 5 लिया तो 5 प्लस टू इज बिकम कितना आ जाएगा 7. ओके, एंड फॉर एक्स इज इक्वल टू क्या है 7. एक्स का वैल्यू दो नंबर पॉसिबल है, 5 भी हो सकते हैं 7 भी हो सकते हैं. तो 5 एक्स का वैल्यू अगर 5 हो गया तो एक्स प्लस टू का वैल्यू 7 होगा, और एक्स का वैल्यू अगर 7 हो गया देन एक्स प्लस टू का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का जगह में 7 पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 9. ठीक है, सो हम लोग को मिल गया. अगर 5 हो गया तो उसका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मतलब हम लोग को बोला है कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर निकालने के लिए. ठीक है, जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. तो अगर 5 एक्स का वैल्यू 5 लिया तो उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या आ रहा है 7. तो 5 एंड 7 जो है ये पेयर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सिमिलरली एक्स का वैल्यू अगर 7 लिया तो एक्स प्लस टू का वैल्यू 9 आ रहा है, तो 7 एंड 9 भी वो सेम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. क्या कंडीशन था कि दोनों जो नंबर है वो 5 से 10 से छोटा होगा और दोनों को सम करने से 11 से बड़ा होगा. तो देखो ये दोनों नंबर 5 जो है 10 से छोटा है, 7 भी 10 से छोटा है, और दोनों को प्लस करने से 12 जो 11 से बड़ा है. ठीक है, जो मैंने अभी भी एक एग्जांपल देके भी दिखाया था. तो अभी और ये केस में भी देखो 7 जो है वो भी 10 से छोटा है, 11 9 भी 10 से छोटा है, और दोनों को प्लस करने से कितना आ रहा है 16 जो है वो 10 से 11 से बड़ा है. तो ये दोनों ही पेयर जो है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. सो देयरफॉर द consecutive two therefore pair of consecutive odd numbers फाइनल रिजल्ट जो लिखना है इसके बाद ये लिखने के बाद ये लिखने के बाद अभी फाइनल रिजल्ट लिख दो. देयरफॉर पेयर ऑफ रिक्वायर्ड लिख देना, रिक्वायर्ड पेयर ऑफ कंजुकेटिव ऑड पॉजिटिव नंबर आर क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ कंजुकेटिव ऑड पॉजिटिव नंबर्स आर क्या हो जाएगा. फर्स्ट तो हो जाएगा 5 के लिए कितना आया था, फर्स्ट आया था 5. जब हम लोग 5 लिया था एक्स का वैल्यू तो एक्स प्लस टू का वैल्यू कितना आया था 7. एंड जब हम लोग 7 लिया था तो क्या आया था, जब हम लोग 7 लिया था तो एक्स प्लस टू का वैल्यू आया था 9. तो ये दो कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, तो हम लोग को जितना भी ऐसा पेयर है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम लोग को लिखने के लिए बोला था. तो हम लोग को ऐसा दो ही पेयर मिला 5,7 एंड 7,9. ये दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का पेयर मिला है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया. क्या कंडीशन था, दोनों नंबर 10 से छोटा होना पड़ेगा. देखो 5 एंड 7 10 से छोटा है, 7 एंड 9 भी 10 से छोटा है, और दोनों को सम करने से 11 से बड़ा होना चाहिए. तो 5 प्लस 7 12 आ रहा है, और 7 प्लस 9 16 आ रहा है, दोनों ही 11 से बड़ा है. ठीक है, और ऐसा कोई भी दूसरा नंबर नहीं है, ऑड नंबर पेयर नहीं है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का पेयर नहीं है बिटवीन बिटवीन बोल के नहीं, कोई भी ऑड नंबर का पेयर है ही नहीं जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि दोनों नंबर 10 से छोटा हो एंड 11 से बड़ा हो. ठीक है, तो हम लोग अगर एक एक करके निकालने के लिए ट्राई करता है तो हम लोग को बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग एक एक करके कितना पेयर ले सकते हैं. एक बार 1,3 को लेना पड़ेगा, सॉरी ऐसा बहुत सारा पेयर हो सकता है, तो सब एक एक करके बहुत को चेक करना पड़ता है. बट अगर इस तरीके से निकालेंगे तो डायरेक्ट हम लोग को निकल जाएगा कि ये दोनों पेयर है जो ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 को करना. 24 का जो क्वेश्चन है वो मैं दिखा देता हूँ क्या है. क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर. इवन अभी उसमें ऑड था, अभी इसमें इवन कर दिया. एंड बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5. दोनों नंबर जो है 5 से बड़ा होना चाहिए. सच दैट देयर सम इज लेस देन 23. दोनों नंबर 5 से बड़ा होना चाहिए और उसका सम जो है वो 23 से छोटा होना चाहिए. तो ये भी होमवर्क है, इसको मुझे करके सेंड करना सेम प्रोसेस में. ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25. ये भी क्वेश्चन इजी है. इसमें देखो क्या बोला है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल का 3 साइड होता है, मेरे को मालूम है. सो सपोज मैं एक ऐसा ट्राइंगल ले लिया, सपोज
इस तरीके से है सपोज, ठीक है। इसे ये एक ट्राइंगल है सपोज, तो इसमें क्या हो गया, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो सबसे सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है वो 3 टाइम्स ऑफ द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट को x पकड़ लो, जो शॉर्टेस्ट है, तो लॉन्गेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स, x का 3 टाइम्स, ओके। एंड द थर्ड साइड, ये जो है ये थर्ड साइड हो जाएगा, तो थर्ड साइड इज़ 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। तो ये लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, मतलब ये सबसे बड़ा जो साइड है, लॉन्गेस्ट मतलब ये वाला है लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर छोटा, तो इससे 2 सेंटीमीटर छोटा, तो इसका लेंथ कितना है 3x, तो इसमें से 2 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा थर्ड साइड, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट को हम लोग x ले लिया, तो लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट का 3 टाइम्स, और थर्ड साइड जो है क्या होता है, लॉन्गेस्ट जो साइड है उसका लेंथ से 2 छोटा, तो 2 माइनस कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या बोला है इसमें, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, पेरीमीटर मतलब मालूम है ना, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। ये सम ऑफ द साइड्स, ये तीनों साइड्स को प्लस कर दो, दिस प्लस दिस, ये तीनों साइड को अगर प्लस कर दिया तब जो आएगा दैट इज़ कॉल्ड पेरीमीटर, मतलब बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल, ओके। ट्राइंगल और रेक्टेंगल हो सभी का, जैसे कि सर्कल में उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस, जो उसका बाउंड्री होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस इन सर्कल, बट इन रेक्टेंगल, इन ट्राइंगल इट्स कॉल्ड पेरीमीटर, सम ऑफ द साइड्स, ओके। सो इसको बोलते हैं बाउंड्री जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर, दैट मीन्स इन अदर वर्ड वी कैन से द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स, ओके। सो इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, मतलब कम से कम, एटलीस्ट लगा दिया, देखो इनइक्वलिटी कंसेप्ट यहाँ से आ गया, एटलीस्ट लगा दिया मतलब यहाँ में इक्वल नहीं लिख सकता है, आइदर 61 और मे बी उससे ज़्यादा, एटलीस्ट मतलब कम से कम 61 बोला है। तो सम ऑफ द साइड्स, मतलब पेरीमीटर मतलब सम ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ओके। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल क्या बोल दिया, एटलीस्ट 61, मतलब ये तीनों का प्लस करने से, ये तीनों जो साइड है, ये तीनों साइड, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, इन तीनों साइड का जो लेंथ है उसको प्लस करने से मिनिमम एटलीस्ट 61 बोला है, मतलब आइदर 61 होगा नहीं तो उससे ज़्यादा होगा, उससे कम नहीं बोला, एटलीस्ट 61, मतलब लिस्ट इज 61, ठीक है। एटलीस्ट 61 मतलब कम से कम 61 होगा या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, बस उससे कम नहीं होगा। तो मतलब ये तीनों का सम करने से, ये तीनों का सम क्या होना पड़ेगा, 61 होना पड़ेगा, नहीं तो 61 से ज़्यादा होना पड़ेगा। तो मतलब दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 61, ओके ना। अभी बोला है कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड तो क्या लिया था हम लोग x, तो x का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो ये जो शॉर्टेस्ट साइड है इसको हम लोग x पकड़ा था, तो x का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो फर्स्ट कंसीडर करना होगा, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर, ये मैंने अभी भी बोला था। तो देयरफॉर तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 3x सेंटीमीटर, ठीक है। सबको सेंटीमीटर में लिया है बिकॉज सब जितना भी दिया है सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। वे लेंथ ऑफ द थर्ड साइड क्या है, ये लॉन्गेस्ट साइड में से 2 माइनस कर दो, तो ये हो गया थर्ड साइड। अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड इट शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 61, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, रिप्रेजेंटेशन करने के बाद लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट साइड क्या था x, जो शॉर्टेस्ट साइड था, फिर लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग लिया था क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला था, इसका 3 टाइम्स, तो इसलिए थ्राइस x। उसके बाद थर्ड साइड क्या था इसका, इससे 2 माइनस, तो ये हो गया। अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल दिया कि ये जो पेरीमीटर है, ये जो मैंने ट्राइंगल अभी भी ड्रॉ किया था, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है, मतलब सम ऑफ द साइड, सम ऑफ द जो साइड है, सम ऑफ द साइड मतलब ये है, फर्स्ट साइड सेकंड साइड थर्ड साइड, तीनों को प्लस करने से आइदर 61 होगा नहीं तो उससे बड़ा होगा, तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 61, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये आ जाएगा 3x 6x प्लस x 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 61 एंड देन 7x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये इसको इस तरफ लेके जाओ तो 61 प्लस 2, ओके। तो ये हो जाएगा कितना आएगा, 61 प्लस 2 इस साइड 63 डिवाइडेड बाई 7, 7 9 जो 63
so value of x must be greater than or is equal to 9. Okay, so x, what is x? X is the minimum length of the shortest sorry, x is the length of the shortest side था. x का x क्या था? लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड. ठीक है, ये था लॉन्गेस्ट साइड और ये था थर्ड साइड. सो शॉर्टेस्ट साइड का जो लेंथ था वो है x. तो x का वैल्यू क्या मिला? आइदर 9 और मोर देन 9. बट यहाँ में बोला x का वैल्यू क्या हो सकता है? आइदर 9 हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है. मतलब 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट मिनिमम 9. ठीक है, तो बोला है कि व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ x. सो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड क्या आ जाएगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ शॉर्टेस्ट साइड आ जाएगा 9 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इतना ही था. तो अगर इनइक्वलिटी यूज़ किया, देखो इतना इजीली ये निकल गया. बट जनरली अगर हम लोग सोचेगा तो इस क्वेश्चन विदाउट इनइक्वलिटी करना बहुत टफ होता है, इतना इजीली नहीं निकलता ये सारा चीज़. तो अभी देखो, देयरफॉर द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट विल सी ये क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद. 26 इज द लास्ट क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट 6.2 आ जाएगा. सो ये क्वेश्चन को देखो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे करके देना. ठीक है, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ ए बोर्ड ऑफ 91 सेंटीमीटर. ठीक है, एक बोर्ड है ऐसा करके, सपोज मैं ऐसे ड्रॉ किया, इसमें बोला नहीं रेक्टेंगल बोल के, तो ऐसे टाइप का एक बोर्ड है सपोज. तो ये इसका लेंथ क्या है? 91 सेंटीमीटर. लेंथ इज द sorry, a man wants to cut three lengths from a single piece of board of लेंथ ऑफ 91 सेंटीमीटर. तो इसका जो लेंथ है ये बोर्ड का, सपोज ये लेंथ जो है ये 91 सेंटीमीटर है. ठीक है, एरिया नहीं, इसका लेंथ जो है वो 91 सेंटीमीटर है. ठीक है, लेंथ इज 91 सेंटीमीटर. तो अभी बोला है कि द सेकेंड लेंथ, तो अभी इसको ये 3 पीस में, इसे 3 पीस में ब्रेक करना चाहते हैं. ठीक है, सो द सेकेंड लेंथ इज v 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. तो शॉर्टेस्ट को अगर हम लोग x ले लिया, जो शॉर्टेस्ट, ये 3 पीस निकलेगा इसमें से. तो सबसे शॉर्टेस्ट जो है, सपोज ये शॉर्टेस्ट है, इसको हम लोग x ले लिया. ठीक है, शॉर्टेस्ट को अगर x ले लिया तो लॉन्गर क्या हो जाएगा? द सेकेंड लेंथ, ये शॉर्टेस्ट को हम लोग x ले लिया. तो अभी जो सेकेंड वाला है, सपोज ये सेकेंड है, तो सेकेंड लेंथ क्या है? 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. सो शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर. ठीक है, तो सेकेंड वाला होगा इससे 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, तो इससे 3 प्लस कर दो, तो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर ये हो जाएगा सेकेंड लेंथ. एंड द थर्ड लेंथ इज विथ ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट. ट्वाइस मतलब डबल, तो शॉर्टेस्ट का डबल क्या हो जाएगा? 2x. ठीक है, शॉर्टेस्ट का डबल हो जाएगा 2x. ठीक है, डबल. तो ये हो गया तीनों, इसका लेंथ x पकड़ा, ये आ गया x+3, ये आ गया 2x. ठीक है, तो अभी क्या बोला है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड मतलब x का जो लेंथ है वो क्या है? इफ़ द थर्ड पीस इज़ टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड. मतलब ये जो थर्ड पीस है ये सेकेंड में से कितना लॉन्गर बोल दिया? 5 सेंटीमीटर साइड में एटलीस्ट. मतलब ये थर्ड पीस जो है, मतलब 2x जो है ये क्या हो जाएगा? थर्ड पीस जो है वो सेकेंड क्या है? सेकेंड है x+3. तो ये थर्ड पीस जो है, ये थर्ड पीस और ये है सेकेंड पीस. तो थर्ड पीस जो है सेकेंड पीस से क्या होना पड़ेगा? एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर. तो ये जो है ये इससे कम से कम 5 सेंटीमीटर ज़्यादा, मतलब ये इससे कम से कम 5 सेंटीमीटर ये ज़्यादा होगा, ये 5 सेंटीमीटर ज़्यादा. तो इस x+3 x+2 लेस देन इज इक्वल टू 9, क्या बोला था? ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है. सेकेंड पीस जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू, सेकेंड पीस मतलब 2x जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3x+5. 2x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3x+5. ठीक है, 2x जो है वो 3x+5 से ग्रेटर देन और इज इक्वल टू होना पड़ेगा. ठीक है, यही बोला है कि सेकेंड पीस थर्ड पीस जो है वो सेकेंड पीस के साथ अगर 5 ऐड किया तो इसके साथ इक्वल हो सकते हैं, नहीं तो ये उससे भी ज़्यादा हो सकता है. मतलब सेकेंड पीस जो है वो थर्ड पीस से मिनिमम 5 बड़ा है, कम से कम 5 बड़ा है. तो अगर 5 यहाँ में ऐड किया
तो 2x जो है इसके साथ इधर इक्वल होगा, नहीं तो उससे भी बड़ा हो सकता है। ओके, सो अभी ये जो दो, तो ये इक्वेशन एक मिल गया, ये इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालना होगा। और एक इक्वेशन क्या दिया है कि ये 91 सेंटीमीटर था, ठीक है, टोटल लेंथ क्या था 91 सेंटीमीटर था। तो एक तो x था, दूसरा था x प्लस 3 और तीसरा क्या था 2x। तो तीनों को प्लस करने से क्या हो जाएगा 91 या उससे छोटा होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि ये बोर्ड को कट के 3 पीस किया, ठीक है। तो उसको प्लस, उसको जब ऐड करेगा तीनों को तीनों का लेंथ को अगर ऐड किया तो आइदर वो 91 आएगा, नहीं तो 91 से छोटा भी आ सकते हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि छोटा कैसे आएगा, बिकॉज जब हम लोग उसको काट दिया तो हो सकता है इसका बीच से बहुत कुछ गिर गया इसका बीच से, ठीक है। तो इसलिए इसका लेंथ फिर से जोड़ने से, इसका लेंथ को जोड़ने से एग्जैक्टली सेम नहीं भी हो सकते, तो इसलिए आइदर वो 91 होगा, नहीं तो उससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसे दो इक्वेशन मिलेगा, एक तो ये तीनों का प्लस, ये तीनों का प्लस करने से लेस देन इज इक्वल टू 91, ये हो गया एक इक्वेशन। इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू एक आएगा और इसको सॉल्व करके एक्स का और एक वैल्यू आएगा। इसमें देखो ये दो इक्वेशन दिया है, ये प्लस होना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से दो इक्वेशन मिलेगा ये। तो अभी ये दोनों इक्वेशन को, ये देखो ये इक्वेशन को लेस देन इज इक्वल टू 91 सेंटीमीटर लिखे, नहीं लिखने से भी होता है, तो सिंप्लीफाई करके ये कंडीशन मिलेगा। और एक चीज़ है कि ये कंडीशन को इसको 2x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2x x प्लस 3 प्लस 5, इसको सिंप्लीफाई करके x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसको, ये जो कंडीशन मैंने अभी भी बोला था कि थर्ड वाला साइड जो है वो सेकेंड वाला साइड से एटलीस्ट 5 बड़ा होगा, तो मिनिमम 5 बड़ा होगा। तो अगर 5 ऐड किया तो इसका वैल्यू इक्वल हो सकता है, नहीं तो वो उससे भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम 5 बड़ा होगा, तो इसलिए 5 ऐड करने के बाद भी इसके साथ ये इक्वल हो सकता है, नहीं तो ये 2x जो है ये x प्लस 3 प्लस 5 से भी बड़ा हो सकता है, बोला है, ठीक है। क्योंकि थर्ड साइड का लेंथ जो है वो इसके साथ 5 प्लस करने के बाद भी बड़ा हो सकता है, नहीं तो इक्वल भी हो सकता है, ऐसा बोला है, ठीक है। ये थर्ड पीस इज़ एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड पीस, ठीक है। तो थर्ड पीस जो है कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होगा सेकेंड पीस से। तो कम से कम मतलब 5 सेंटीमीटर ही नहीं, उससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब सेकेंड पीस के साथ अगर हम लोग 5 ऐड किया तो मे बी ये थर्ड पीस इसके साथ इक्वल हो सकता है, नहीं तो उससे भी बड़ा हो सकता है। तो उसी को ये अमल किया हम लोग कि ये जो थर्ड पीस है ये इसके साथ प्लस करने से, सेकंड पीस के साथ 5 प्लस करने से थर्ड पीस जो है आइदर इसके साथ इक्वल होगा, नहीं तो इससे भी बड़ा हो सकता है। तो अभी इसमें सिंप्लीफाई कर दो, देन यू विल गेट एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8। तो अभी इसमें से मिल गया कि एक्स ग्रेटर देन 8 और इसमें से मिल गया एक्स लेस देन 22। तो एक्स का वैल्यू 8 एंड 22 का बीच में होगा, ठीक है। सो द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, देयरफॉर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड विल बी, क्या आएगा, पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बट लेस देन और इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो एक्स का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 8 एंड लेस देन और इज इक्वल टू 22। ओके, सो दिस इज you have to see. Okay, so up to this you have to do. Okay, so and about the rule, तो ये हो गया 6.1 का ऑल सॉल्यूशंस। तो ये क्वेश्चन को भी मुझे करके भेजना, ठीक है। तो होमवर्क मैंने अभी 3 होमवर्क दिया है, यहाँ से तीनों को करना, उसको मुझे भेजना फॉर अटेंडेंस के लिए। एंड 6.2 को करने के लिए कुछ रूल है। 6.1 तो कंप्लीट हो गया। 6.2 में हाउ टू ड्रॉ ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। मतलब अभी तक जितना प्रॉब्लम किया था उसमें खाली x ही था, अभी इसमें x y दोनों आने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। तो अगर तुम्हारा मैंने ये PDF भेजा हो शायद, और मैं भेज दूंगा नहीं तो ग्रुप में, अगर बुक है या मैं ये PDF भेज दूंगा क्लास के टाइम में, तो इसमें से ये चीज़ को पढ़ना एक बार। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका ऊपर डिस्कस करूँगा, ठीक है, अबाउट द रूल ऑफ हाउ टू ड्रॉ द इनइक्वालिटी, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी, ओके, यूजिंग 2 वेरिएबल। सो ये सारा चीज़ मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आप टू 6.1 आज कंप्लीट कर लो, तो नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट दिस। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस।